Now in this topic, that is current electricity, we have to basically discuss the concept of current, and then we have to solve various network and the related applications of current electricity. Now I say that current is charge upon time. Now in case of conductor, the conduction or the current is mainly due to presence of free electrons. So that I can write as N upon T, where T is the time in which the electrons are flowing. N is number of electrons and T is the charge of one electron. Now if I want to send a current of 1 ampere, then instead of I can write 1 N into 1.6 into 10 raised to minus 19. I want to send this current in 1 second, then how many electrons are required? So 1 ampere into 1 second is 1 upon 1.6 into 10 raised to minus 19. 1 upon 1.6 is 0.625 into 10 raised to plus 19 electrons. So these many electrons I will require. Now as far as conductors are concerned, the current in any conductor is due to flow of electrons. Now electrons will always flow from lower potential to higher potential. That current is called as actual current. And the current which is conventional, it will go from higher potential to lower potential. So one is actual current, that is the flow of electrons, negative to positive, and the conventional current, which according to our convention, current can go from higher potential to lower potential. So this is how current can flow in a conductor. Now even though current is having direction, but still it is a scalar quantity. It cannot be classified as a vector quantity because its magnitude is sufficient to define current. We don't require the direction. Now in case of electrolytes, that is liquids, electrolyte like NaCl or CuSO4 or CaCl2 or any other electrolyte, in these electrolytes the conduction is due to the cations and the anions. Cations are the positive charges, like when I write HCl, then H plus and Cl minus. So positive ions go to the cathode, hence they are called cations. Negative ions go to anode, hence they are called anions. This you must have studied in electrochemistry also. Now in this case, what happens is the current is flowing due to the flow of these ions. So in case of electrolyte, the current is possible because of the ionic flow. In case of gases, again ions are responsible for current. Now when we talk about gases, there is one question which is very commonly asked. He says that 10 raised to 19 protons go to the right, 10 raised to 19 electrons go to the left, and 10 raised to 18 alpha go to the right. अब इलेक्ट्रॉन का वो जो भी डायरेक्शन लेगा उसको अपने को उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज जिधर जाता है उसका इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही अपोजिट चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. सो देन आई कैन कंसीडर दिस एज प्लस 1.6 into 10 raised to minus 19 एक प्रोटॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 19. इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 1.6, लेकिन माइनस 1.6 कहां जा रहा? लेफ्ट में जा रहा. तो प्लस 1.6 राइट में जाएगा. और अल्फा का चार्ज है ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 into 1.6 into 10 raised to minus 19 into how many alpha? 10 to the power 18 alpha. तो ये तुम्हारे को चार्जेस मिल जाएंगे 1.6, ये भी 1.6, लेकिन ये मिलेगा 0.32. So 1.6 plus 1.6
3.6 plus 0.32 कूलम। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3.52 कूलम आएगा। अब वो अपने को क्या बोल रहा है कि ये सारे चार्जेस गिवन स्पेस में मूव कर रहे हैं इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। तो चार्ज मेरे पास है, टाइम मेरे पास है, तो करंट आ जाएगा dq by dt। dq by dt मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज 3.52 upon 10 which is 0.352 कूलम पर सेकेंड। इसको एम्पियर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो एसआई सिस्टम में करंट का यूनिट है एम्पियर। एम्पियर आल्सो इज अ फंडामेंटल यूनिट। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसमें एक एम्पियर भी है। तो गैसेस के अंदर जो भी आयंस मूव करेंगे उनकी वजह से हमारे को करंट मिलता है। दैट करंट आई कैन कैलकुलेट जस्ट नाउ दैट आई हैव शोड यू। अब करंट का एसआई सिस्टम में यूनिट एम्पियर है, तो सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होगा स्टैक एम्पियर। सो 1 स्टैक एम्पियर is equal to 1 ESU स्टैक कूलम अपॉन 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम तो सेकेंड में रहेगा। 1 ESU is 3.3 into 10 raised to minus 10 upon 1, तो 1 स्टैक एम्पियर is equal to 3.3 into 10 raised to minus 10 एम्पियर। ये दोनों का आपस में क्या आ जाएगा? रिलेशन आ जाएगा, that is the CGS unit and the SI unit। अब जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उस एटम के अंदर करंट फ्लो होता है। दैट करंट इज गिवन बाय I is equal to Q by T, और I can write Q बोले तो इलेक्ट्रॉन और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो जितनी इलेक्ट्रॉन की घूमने की फ्रीक्वेंसी होगी उतना वो करंट क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। अब F is frequency in circular motion। You know that frequency is velocity upon 2 pi r, where r is the radius of the orbit in which the electron is moving। So I can write I is equal to ev upon 2 pi r। ये मेरा करंट का इक्वेशन हो जाएगा। अब इसमें तुम्हारे को क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी देगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुमको मालूम है, तो तुम एटम के अंदर करंट फाइंड आउट कर सकते। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया तो फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और रेडियस देगा, तो फिर भी तुम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। Now when I say that I is equal to dq by dt, अब मेरे को अगर करंट वेरिएबल दिया है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो फिर I into dt is equal to dq। तो फिर मेरे को चार्ज निकल जाएगा इंटीग्रल ऑफ I into dt is equal to q। अब ये जो करंट मेरे को दिया वाला है I is equal to 3t square plus 4t minus 12, ये करंट का रिलेशन मेरे को दिया है। अब मेरे को बोला फाइंड द चार्ज फ्लोइंग एट t is equal to 0 to t is equal to 0.5 सेकेंड। अब हम चार्ज निकाल सकते हैं। I dt करेंगे पहले, तो इंटीग्रल ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 4t minus 12 from 0 to 0.5 is equal to integral of dq। इंटीग्रल ऑफ dq is q। अब इसको इंटीग्रेट करने का 3t क्यूब अपॉन 3, इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका? 3t क्यूब अपॉन 3 प्लस 4t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 12t इज इक्वल टू q। अब इसमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन, तो अपने को चार्ज मिल जाएगा। I will be able to get the value of charge if I substitute the value of small t। small t का अपर लिमिट है 0.5, लोअर लिमिट है 0। लोअर लिमिट डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली t की जगह पे 0.5 डाल देने का अपने को आंसर मिल जाता। अब उसने बोला कि अगर यही चार्ज 10 सेकेंड्स में फ्लो होता
अब मेरे पास एक कंडक्टर है जो नॉन यूनिफॉर्म है। अब इस नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो करंट I है। तो किसी भी सेक्शन में अगर हम करंट निकालेंगे तो हर सेक्शन में करंट की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो ऐसे डायग्राम देके अगर आपको पूछा कि इन डिफरेंट पार्ट्स द करंट इज डिफरेंट, तो यू कैन से दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स। हर पार्ट में करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है, जितना करंट एंटर करेगा वही करंट पूरे कंडक्टर के अंदर से भी पास होगा। सो करंट डज नॉट change because of area, there is no change in current. अब हमारे पास एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। According to Ohm's law, current is directly proportional to potential difference, or I is equal to some constant K into V, where K is a constant and it is called as conductance of conductor. मतलब जितने टाइम्स तुम पोटेंशियल बढ़ाओगे उतने टाइम्स करंट ऑटोमेटिकली क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। सो आई कैन से दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I is equal to kV. Now K is conductance and it is reciprocal of resistance. Resistance means opposing the current. Conductance means allowing the current. So then I can write I is equal to V upon R. किसी भी कंडक्टर में जाने वाला जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस रहेगा। जितना बड़ा रेजिस्टेंस उसमें जाने वाला करंट उतना ही कम, जितना छोटा रेजिस्टेंस उसमें जाने वाला करंट उतना ही ज्यादा रहेगा। अब इसको कंपेयर करना Q is equal to CV। कैपेसिटर में जो चार्ज फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी है। बड़ी कैपेसिटी बड़ा चार्ज, छोटी कैपेसिटी छोटा चार्ज। So that is how the things work. Current inversely directly proportional to V, inversely proportional to R. V बोले तो potential difference। V का मतलब क्या है? Potential difference between the 2 points through which the current is flowing. अब इसी Ohm's law को यूज करके अगर मैंने R लिखा तो R आ जाएगा V upon I। इसका मतलब resistance does not depend on V, does not depend on I, क्योंकि V बढ़ेगा तो I automatically बढ़ना चाहिए। That means resistance will always remain independent of voltage, independent of current। लेकिन resistance दूसरे चीजों पे डिपेंड करता है। Resistance directly proportional to L, resistance inversely proportional to A, and resistance depends on temperature। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टेंस के पास है। और चौथी चीज जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है दैट इज मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कॉपर लेंगे तो रेजिस्टेंस अलग आएगा, कांस्टेंटन लेंगे तो रेजिस्टेंस अलग आएगा, निक्रोम लेंगे तो रेजिस्टेंस अलग आएगा। मतलब मटेरियल बदल दिया तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो रेजिस्टेंस ये चार चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल। अब इसके अंदर देखो, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक बल्ब आते हैं, अब इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट होता है, जो इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं उनमें फिलामेंट होता है। अब फिलामेंट का थिकनेस ये डिपेंड करेगा उस लैंप के वैटेज के ऊपर। जिसका वैटेज 40 वैट है उसका फिलामेंट थिन आएगा, 60 वैट वाले का थोड़ा थिक आएगा, और 100 वैट वाले का तो और भी थिक आएगा। तो जैसे जैसे वैटेज बढ़ता है रेजिस्टेंस कम होते जाता है, इसका मतलब थिकनेस बढ़ेगी। मोर थिकनेस लेस रेजिस्टेंस, लेस थिकनेस मोर रेजिस्टेंस। इसीलिए अगर हमारे को किसी भी डिवाइस में ज्यादा करंट भेजना है तो उसमें थिक वायर लगाते हैं। जैसे हमारे घर में गीजर है तो गीजर में जो वायर लगेगा वो थिक होता है, और सादा बल्ब है तो उसमें थिन वायर लगाए तो भी हमारा काम
चल जाएगा। So that is one important thing. Resistance inversely proportional to area. Resistance inversely proportional to area. Current inversely proportional to resistance. That means current is directly proportional to the area. More the area, more the current. Less the area, less the current. अब मेरे पास एक कंडक्टर है जिसको मैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए यूज करता हूं। किसके लिए यूज करा मैंने? इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज होता है हमारे घर में सेफ्टी के लिए कि अगर जितना करंट रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा करंट अगर आ गया तो फ्यूज ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा, मतलब इट विल ब्लो ऑफ। तो फ्यूज का काम है आगे के डिवाइसेस को बचाना, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्यूज हम यूज करते हैं उसमें जाने वाला करंट अगर I है और उसका रेडियस R है, so then I square is directly proportional to R cube। तो अगर मेरे पास रेडियस R है उसमें से करंट I जा सकता है। अगर मैंने रेडियस को 2R कर दिया तो करंट कितना होगा? 2 का क्यूब 8, और 8 का क्या लेने का? फिर स्क्वायर रूट लेने का। तो 2R वाले कंडक्टर में से करंट जाएगा 2 रूट 2I, क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट होता है 2 रूट 2। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए ये कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं। अब किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो अपन ने डिस्कस किए। अब हर कंडक्टर का जो मटेरियल होता है उसके पास अपनी खुद की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी रो इज गिवन बाय R into A upon L। अब ये रो जो है ये काय पे डिपेंड करता है? रो डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, रो डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, लेकिन रो डिपेंड करेगा मटेरियल। रो डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड रो आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है, देखो, 2 copper wires having length in the ratio 3:4 and diameter in the ratio 1:2, what will be the ratio of their specific resistors? अब इसमें लेंथ का रेशियो दे दिया, डायमीटर का रेशियो दे दिया, हम फटाफट कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं, यहां हमारा मार्क चले जाता। इसके लिए ध्यान रखना कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना तो एरिया पे डिपेंड करता है ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है। कॉपर के वायर है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा 1:1। अगर वो रेजिस्टेंस का रेशियो पूछता तो रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया दोनों पे डिपेंड करता है, तो वहां पे हमारे को कैलकुलेशन करके रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे, तो हम टेम्परेचर के साथ उसका जो डिपेंडेंस है वो कंसीडर कर सकते हैं कि RT is resistance at T degree Celsius, R0 is resistance at 0 degree Celsius, so then RT minus R0 is equal to some constant alpha into R0T। अब अल्फा ये जो मैंने यूज किया है इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, TCR। टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस में चेंज आ गया, तो दैट इज कॉल्ड एज अल्फा, दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि RT is equal to R0 into 1 plus alpha T। अब अगर कंडक्टर है तो अल्फा पॉजिटिव आएगा, अगर सेमीकंडक्टर है तो अल्फा नेगेटिव आएगा, और सेमीकंडक्टर अल्फा विल बी नेगेटिव। सो दैट इज हाउ आई कैन फाइंड द रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर। 0 डिग्री का रेजिस्टेंस मेरे को मालूम है, और अगर मैंने टेम्परेचर को 0 से
40 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो चेंज कितना हुआ टेम्परेचर में 40 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 40, तो स्मॉल टी की जगह पे मैं 40 लिखूंगा। अब इसमें कभी-कभी क्या होगा कि 0 डिग्री वाला रेजिस्टेंस अपने को क्वेश्चन में नहीं देता, तो फिर हम क्या कर सकते हैं RT2 is equal to RT1 into bracket 1 plus alpha into T2 minus T1। ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं जैसा हम लीनियर एक्सपेंशन में करते हैं कि लेंथ एट हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू लेंथ एट T1 टेम्परेचर into bracket 1 plus alpha T2 minus T1। T2 minus T1 का मतलब होता है rise in temperature। तो same thing I can do in case of resistance also। अब जब हमने रेजिस्टेंस को रिलेट किया टेम्परेचर से, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रो T इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा T, where रो T is specific resistance at T degree Celsius, rho naught is specific resistance at 0 degree Celsius, small t is rise in temperature, and alpha is coefficient of linear expansion। Again, alpha is positive for metals, negative for semiconductors। अब जब हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है रो, ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। इसका यूनिट आता है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। So this is how the variation of resistance can take place with respect to the temperature। अब हमने जो लॉ पढ़ा that is Ohm's law। Ohm's law में अगर मैंने ग्राफ उतारा by taking voltage on x axis and current on y axis, तो ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों? ये करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है और इनका जो प्लॉट आएगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा। ऐसे डिवाइसेस जिनका ग्राफ लीनियर आता है उनको बोलते हैं ओहमिक डिवाइस। और अगर मैंने इस ग्राफ का स्लोप निकाला, क्या निकाला मैंने? स्लोप निकाला। स्लोप में मेरे को क्या मिलेगा? y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, बोले तो करंट अपॉन वोल्टेज दैट इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस। और अगर मैंने इस एंगल को थीटा बोला, देन स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा बोल सकते हैं अपन। तो tan थीटा विल बी 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो जो भी रेजिस्टेंस होगा वो हम यहाँ पे ग्राफ के स्लोप में से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे कि कंडक्टर्स हैं या कार्बन रेजिस्टेंस है, ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, इसीलिए इनको ओहमिक डिवाइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? ओहमिक डिवाइस। अब ये जो डिवाइस है इसका वोल्टेज करंट का ग्राफ, दिस इज नॉट कमिंग स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हालांकि वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ रहा है, लेकिन इनिशियली वोल्टेज बढ़ाने से करंट उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा था जितना यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन ओहमिक डिवाइस है। और ऑल ऑफ यू नो दैट ये पीएन जंक्शन का ग्राफ है फॉरवर्ड बायस वाला। कौन सा वाला? फॉरवर्ड बायस वाला। तो पीएन जंक्शन ये नॉन ओहमिक डिवाइस है, सेमीकंडक्टर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? सेमीकंडक्टर। इसी तरह से जो पावर डिवाइसेस आते हैं, डायएक्स है, ट्रायएक्स है, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, इसका मतलब इनका वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आ सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन करंट कम हो रहा है। इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन नॉन ओहमिक डिवाइस में ही मिल सकता है, ओहमिक डिवाइस में अपने को नहीं मिलेगा। तो ये ओम्स लॉ के बारे में। अब हम जो रेजिस्टेंसेस यूज
जिसको ब्लैक ब्राउन रॉय, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ये रॉय ऐसा होता है। ये ब्लैक ब्राउन रॉय कमिंग फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, he is having a very good wife. ये टोटल 10 कलर्स है। नंबर 1 कलर ब्लैक है, याद रखना। बी 3 बार आता, ब्लैक ब्राउन ब्लू। तो सबसे पहले ब्लैक, फिर ब्राउन और बीच में ब्लू। तो बी बी रॉय, ब्लैक ब्राउन रॉय, काला पीला रॉय, कमिंग फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन बट हैविंग अ वेरी good wife. Forget about his wife, we remember this code. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और ये जो कलर्स हैं, ये नंबर इनके कोड है। अब एक रेजिस्टेंस है कार्बन फिल, उसको देखने में ऐसा दिखेगा आपको, ये बड़ा करके बता रहा हूं मैं, एक्चुअली छोटा होता है बहुत। अब इसमें 3 कलर्स दिख रहे हैं मेरे को, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। ये कलर है येलो, ये वायलेट और ये ऑरेंज। येलो का मतलब 4, सेकेंड कलर वायलेट, वायलेट का मतलब 7 और तीसरा जो कलर होता है वो नंबर ऑफ जीरोस, क्या है वो? नंबर ऑफ जीरोस। तो येलो वायलेट ऑरेंज, येलो इज 4, वायलेट इज 7, नंबर ऑफ जीरोस, ऑरेंज इज 3, मतलब 3 जीरोस। तो इसको बोलते हैं 47,000 ओम या 47 किलो। और एक ट्राई कर सकते हैं अपन, रेड रेड रेड, रेड 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 का मतलब 2 2 और तीसरा रेड नंबर ऑफ जीरो, रेड की वैल्यू 2 है तो 2 जीरो, ये आ जाएगा 2.2 किलो ओम। और अगर मैंने बोला ब्राउन, then green and black, ब्राउन की वैल्यू 1 है, ग्रीन की वैल्यू 5 है, ब्लैक की वैल्यू 0 है, मतलब 0 लिखने की अब जरूरत ही नहीं है, तो इसका वैल्यू सिर्फ 15 ओम आएगा। अब इसके साथ साथ ये रेजिस्टेंस में टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस गिवन बाय 3 बैंड्स, मतलब हर रेजिस्टेंस में एक चौथा बैंड आता है। ये 3 तो कलर बैंड आएंगे, चौथा बैंड यहाँ पे आता है। अगर ये गोल्डन कलर का है तो इसका टॉलरेंस है ±5%। मतलब पहले रेजिस्टेंस में गोल्डन बैंड होता तो मैं लिखता था 47 किलो ओम ±5%। अगर सिल्वर बैंड होता तो देन आई वुड हैव रिटन ±10%। और अगर नो कलर का बैंड होता, मतलब बैंड ही नहीं होता, तो फिर क्या लिखते थे अपन बच्चों? ±20%। ये कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके ऊपर भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, इजी है, अपने को याद रहा तो अपने हाथ में इजी मार्क आ जाते। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बीबी मतलब ब्लैक ब्राउन, नॉट ब्राउन ब्लैक, ब्लैक ब्राउन, काला पीला, ऐसे याद रखो। ब्राउन पीला नहीं होता है, लेकिन याद रखने को इजी है। अपन बोलते हैं ना अपने इंडियन कॉमन लैंग्वेज में काला पीला है, तो ब्लैक ब्राउन, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे को मालूम है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो हर कंडक्टर में जब हम उसको एनर्जी देंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। एनर्जी देने के लिए हमने इसको बैटरी लगाया है जिसका पोटेंशियल है V। तो ये दोनों एंड्स के बीच में मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस V मिलेगा। अगर मैंने V को इसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया तो मेरे को V/L मिल जाएगा। V
V by L मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज V by L। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के अंदर ये ड्रिफ्ट होंगे, क्या होंगे? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट होने का मतलब है टू मूव विद अ वेरी स्मॉल वेलोसिटी। अब वो जो वेलोसिटी आएगी दैट इज गिवन बाय I upon NEA। That drift velocity is given by I upon NEA. N is number of electrons per unit volume. Number of electrons per unit volume. A is area of cross section. बाकी चीजें तो मालूम है अपने को, सिर्फ n में थोड़ा गड़बड़ हो जाता। तो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो Vd I upon NEA, ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इस फार्मूले के हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया मैंने लिखा पाई r स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता कि एक कंडक्टर है जिसका डायमीटर है d, डायमीटर है d, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है v। दूसरा कंडक्टर सेम मटेरियल सब कुछ सेम, सिर्फ डायमीटर d/2 है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? अब हम क्या करते हैं जल्दी से, डायमीटर d मतलब रेडियस r, डायमीटर d/2 मतलब रेडियस r/2। जो वेरिएशन डायमीटर में होता है वही वेरिएशन रेडियस में भी होगा। तो हम r की जगह r/2 ले लेते हैं, r²/4 कर लेते हैं, 4 ऊपर आ जाता, हमारा आंसर आता 4v। ये ऑप्शन में भी रहता, लेकिन यहाँ एक जगह हम फंस गए। फंसे क्या कि उसने करंट के बारे में कुछ नहीं बोला, करंट के बारे में कुछ नहीं बोला। उसने क्या बोला? d डायमीटर वाला कंडक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है, d/2 डायमीटर वाला कंडक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? करंट के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब करंट चेंज हुआ है। जब करंट चेंज हुआ है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस है ना कि जब तुम डायमीटर को आधा कर दोगे तो एरिया 1/4 हो जाएगा, तो करंट भी 1/4 हो जाएगा। तो जब तक क्वेश्चन में फॉर द सेम करंट को नहीं बोलता तब तक हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन यूज नहीं करेंगे। अगर उसने बोला फॉर द सेम करंट डायमीटर इज d/2, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी 4v, करेक्ट आंसर आएगा। ये दो चीजों का बेसिकली ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला आ गया I upon NEA। अब इसमें से I upon A जो है इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? करंट डेंसिटी। और इसको डिनोट करते हैं हम J से। तो I upon A is equal to J। अब ये J जो है करंट डेंसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अपोजिट रहेगा। हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसा रहेगा? अपोजिट रहेगा, बट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये J is equal to I upon A यूज करते हैं, और इफ आई राइट di/dA is equal to J और di is equal to J into dA। अब अगर वो जो एरिया है वो करंट के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है तो JDA से काम चल जाएगा। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर कंपोनेंट लेना पड़ेगा cos थीटा। तो देन आई कैन राइट di is equal to J dot dA। ये डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। अब di हमको मिल गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो I मिल जाएगा, di को इंटीग्रेट करेंगे तो I मिल जाएगा। So this is current density which is a vector quantity. Current is not vector, but current density definitely a vector quantity। अब इसमें क्या होता है
इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेशन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर हम लिख सकते हैं Vt इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, काइनेमैटिकल इक्वेशन नंबर 1। अब Vt बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, u मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले के टोटल वेलोसिटी, उसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। वो एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। सो Vt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बोले तो f अपॉन m इनटू टाउ। टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम, टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनके बीच में पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गए लेकिन पॉजिटिव आयंस भी तो होंगे ना यहाँ पे। तो इनका और पॉजिटिव आयन का क्या होता है? कोलिजन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी लूज कर देता है। अब जब वो एनर्जी फिर से गेन करके आगे जाने की कोशिश करता है तो फिर से और एक कोलिजन होता है। तो ये दो कोलिजन के बीच में जो टाइम है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय टाउ। अब f की जगह पे मैंने E into E रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मेरा Vt आ जाएगा E अपॉन m इनटू टाउ। ये भी Vt है, ये भी Vt है, दोनों को अगर मैंने इक्वेट किया तो फिर मेरे को मिलेगा फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। ये दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटीज को क्या करेंगे अपन? इक्वेट कर देंगे। तो मेरे को मिलेगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ml अपॉन ne स्क्वायर a इनटू टाउ। m बोले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l बोले तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, a बोले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टाउ बोले तो रिलैक्सेशन टाइम। अब इसमें तुमको सारे वेरिएशंस मिल गए। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। देखो जब टेंपरेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, फटाफट कोलिजन होंगे ना, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? कम होगा। तो टेंपरेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब तीन तो आ गए, लेंथ, एरिया और टेंपरेचर। चौथा वेरिएशन है मटेरियल। मटेरियल मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कॉपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है, आयरन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है, मतलब मटेरियल बदल गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? अपना चेंज हो जाएगा। अब इसमें से क्या करने का? RA अपॉन L, A अपॉन L इज इक्वल टू m अपॉन ne स्क्वायर टाउ। ये आ गया तुम्हारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रो बोलते हैं, मास अपॉन ne स्क्वायर टाउ। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड कर रहा और टेंपरेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। ये दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, मटेरियल एंड टेंपरेचर। अब अगर मैंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लिया तो फिर मेरे को मिलेगा कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। अब अभी मैंने क्या लिखा था? Vt इज इक्वल टू E इनटू E अपॉन m इनटू टाउ। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E and drift velocity is also directly proportional to tau. Tau बोले तो रिलैक्सेशन टाइम। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रिलैक्सेशन टाइम कम होते जाएगा और रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमको कम मिलेगी। अब किसी भी कंडक्टर के पास जो रेजिस्टेंस है वो फाइनाइट रेजिस्टेंस है। अब उस रेजिस्टेंस को हम डिनोट ऐसे करते हैं, और अगर मैंने रेजिस्टेंस एक के बाद एक R1, R2, R3 लगा दिया तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंसेस इन विच कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाया है लाइक दिस। ये है 120 वोल्ट की बैटरी।
ये रेजिस्टेंस है 20 ओम, ये है 40 ओम और ये है 60 ओम। अब अपने को करंट निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं RS, वोल्टेज अपने को मालूम है तो I is equal to V upon RS। करंट आ जाएगा 120 upon 120 बोले तो 1 एम्पियर। अब कोई भी रेजिस्टेंस का वोल्टेज पूछा, R2 का पूछा तो I into R2, I is 1, R2 is 40 बोले तो यहाँ पे मेरे को 40 वोल्ट मिलेगा। कितना वोल्टेज मिलेगा? 40 वोल्ट। अब इसी कैलकुलेशन को मैं एक दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। VR2 is equal to R2 upon R1 plus R2 plus R3 into V। 40 upon R1 plus R2 plus R3 120 into V is 120। So 120 कैंसिल, आंसर बचेगा अपना 40 वोल्ट। इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम। तो वोल्टेज डिवाइडर में जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज चाहिए उसकी वैल्यू को पूरे रेजिस्टेंस जितने सीरीज में है सबको ऐड करके उससे डिवाइड करो और टोटल वोल्टेज से क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। अब सपोज मैंने ऐसे रेजिस्टेंस दिया आपको, ये एक है, ये एक है, यहाँ पे मैंने ग्राउंडिंग कर दिया, यहाँ पे वोल्टेज आपको दिया से 160 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस है R1 is equal to 30 ohm, R2 is equal to 60 ohm and R3 is equal to 20 ohm। अब मैंने क्या निकालो बोला तुम्हारे को? A पॉइंट का वोल्टेज निकालो। ये पॉइंट मेरा A है। अब पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे है, तो हम सर्किट में पॉजिटिव से अंदर आएंगे। कैपेसिटर के लिए क्या था? पॉजिटिव से अंदर आएंगे। A के बाद वाला रेजिस्टेंस R3 का वोल्टेज मतलब A का वोल्टेज, सो VA is equal to V of R3। R3 की वैल्यू कितनी है? 20 अपॉन तीनों का टोटल 110 इनटू वोल्टेज कितना है? 160। this zero get cancel, 11 1s are 11, बचेंगे 5, 11 4s are 44, बचेंगे 6, 11 5s are 55, बचेंगे 5, 11 4s are 44, मल्टीप्लाइड बाय 2 बाकी है तो ये आ जाएगा तुम्हारा 29.08 वोल्ट। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, like this, like this, like this, like this, then here again like this and like this। यहाँ पे अपने को एक बैटरी लगा के दे दिया, इस पॉइंट को बोला A, इसको बोला B। ये है तुम्हारा 100 ओम, ये है तुम्हारा 20 ओम और ये है तुम्हारा 30 ओम। ये है तुम्हारा 50 ओम और ये वाला है 200 ओम। यहाँ पे जो अपने को वोल्टेज दिया है 50 वोल्ट। ऐसा क्वेश्चन आ सकता, फाइंड VA माइनस VB बोल रहा। अब A का वोल्टेज, बैटरी का पॉजिटिव देखो ये है, यहाँ से सर्किट में अंदर जाना। A का वोल्टेज मतलब ये दोनों का वोल्टेज और B का वोल्टेज मतलब 200 का वोल्टेज। निकाल लेते हैं अपन। VA is equal to दोनों मिला के रेजिस्टेंस 50 अपॉन 150 इनटू अप्लाइड वोल्टेज कितने का है? 50 का है, 51 का 53 का, तो VA आ गया तुम्हारा 50/3। VB निकालना है,
200 plus 50, 250 into 50. 51 का 55 का 5 का 540 का ये आ जाएगा BA minus BB is equal to 50 by 3 minus 40. 50 minus 340 is 120. 50 minus 120 minus 70 by 3 multiple. क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है। तो ये सीरीज पैरेलल के जो क्वेश्चंस है ना, यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको डरते हैं। डरने की बात नहीं, बेसिक चीजें ध्यान में रखना। सीरीज में करंट डिवाइड होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। अब अगर अपने को रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/Rn। और अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंस है तो Rp is equal to R1 into R2 upon R1 plus R2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट है, हर रेजिस्टेंस को वोल्टेज सेम मिलेगा लेकिन करंट डिवाइड होके मिलेगा। तो करंट विल डिवाइड बट वोल्टेज विल रिमेन द सेम। अब इसमें क्वेश्चन अपने को दे दिया, ये एक कंडक्टर है, ये ऐसे like this, then like this, फिर यहाँ नीचे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे वोल्टेज दे रहा वो 12 वोल्ट, ये +12 है, ये 0 है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 12 है। अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम, 6 ओम, 6 ohm, and here it is 3 ohm. अब क्वेश्चन क्या पूछा? Find the potential across 6 ohm resistors. ये दोनों में से कोई भी 6 ohm का पोटेंशियल निकालो, दोनों पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहेगा ना, तो ये 6 और 6 का पैरेलल 3 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है ना R1 R2, तो ये दोनों का मिला के क्या हो गया? 3 हो गया। अब 2 और 3 दोनों को मिला के 12 वोल्ट है, हमको वोल्टेज किसका चाहिए? 3 का। 3 upon 2 plus 3 5 into 12, that is 36 upon 5, which is 7.2 volt. 7.2 volt। तो ये दोनों मिला के इसका भी 7.2, इसका भी 7.2। अब इसी टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें करंट पूछता है, क्या पूछेगा? उसमें करंट पूछेगा। अब जब करंट पूछेगा ऐसे डायग्राम देगा आपने को, like this and like this। जैसे हमने यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकाला, कंसेप्ट यूज किया कि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, सेम वे हियर आल्सो। सपोज यहाँ पे तुमको करंट दे दिया 4 एम्पियर, ये रेजिस्टेंस है तुम्हारा 1 ओम, ये रेजिस्टेंस है तुम्हारा 3 ओम और ये रेजिस्टेंस है तुम्हारा 6 ओम। अब तुम्हारे को क्वेश्चन पूछा कि 3 ओम में करंट कितना जाएगा? अब 1 और 3 सीरीज में है तो ये दोनों में तो करंट सेम ही जाएगा, तो दोनों को मिला के रेजिस्टेंस कितना होता है? 4 ओम। हमको 3 ओम में करंट पूछा, मतलब ऊपर वाली ब्रांच में, तो हम ऊपर वाली ब्रांच को नहीं देखेंगे, नीचे वाली ब्रांच को देखेंगे। 6 अपॉन करंट जिस ब्रांच में निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जिस ब्रांच का करंट निकालना है उसके अपोजिट ब्रांच को देखो। 6 अपॉन दोनों का टोटल 6 + 4 10 into 4 एम्पियर
ये आ जाएगा तुम्हारा 24/10 दैट इज 2.4 एम्पियर। तो 3 ओम में तुम्हारे को 2.4 एम्पियर करंट मिलेगा। ये मतलब 3 दोनों सीरीज में है ना, तो इस ब्रांच में 2.4 जाएगा और 1.6 एम्पियर इस वाली ब्रांच में जाएगा। तो इसको बोलते हैं करंट मिरर। क्या बोलते हैं? करंट मिरर। मिरर मतलब सामने है। अब आपने कोई और डायग्राम दिया, सपोज मिक्स कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल का, ये ऐसा, ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी आए वाले क्वेश्चंस है। ये लाइक दिस, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये आएगा तुम्हारा 6 ओम, फिर ये 4 ओम, फिर ये 4 ओम, फिर ये 6 ओम, और यहां अपने को बैटरी देगा 2 ओम, 6 ओम। अब पहले बैटरी दिया है अपने को 12 वोल्ट की, कितने की दिया है? 12 वोल्ट की दिया है। अब सबसे पहले बैटरी में से कितना करंट निकलेगा ये निकाल लेना, मतलब ये पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। 4 4 4 12, 12 पैरेलल 6 4, सिंपल। 4 4 4 सीरीज 12, 12 पैरेलल 6 4, 4 4 4 12, 12 पैरेलल 6 4, 4 + 2 6, 6 + 6 12, तो रेजिस्टेंस टोटल आ गया 12 ओम। तो करंट टोटल आ जाएगा 12/12 दैट इज 1 एम्पियर। तो यहां से करंट जाएगा तुम्हारा 1 एम्पियर। यहां 1 एम्पियर आने के बाद उसको कितने रास्ते हैं जाने को? 2 रास्ते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखो, ये 12 आया था, 12 पैरेलल 6 4 आया, 4 4 4 फिर से 12 आया, मतलब ये जो आगे का सेक्शन है इसका रेजिस्टेंस 12 आता। कितना आता है इसका रेजिस्टेंस? 12। वो 12 और 6 पैरेलल लेके 4 निकालते ना अपन, तो ये आगे के पूरे रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 12 आता है। इसका मतलब करंट को जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक 6 ओम वाला है और ये 4 नहीं लेना, ये 12 ओम है। कितने का है ये? क्योंकि ये पूरा गिनना पड़ेगा अपने को। तो 12 ओम इसका रेजिस्टेंस है, हमको करंट चाहिए 12 ओम वाला, तो हम 12 को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? 6 को देखेंगे। देखेंगे बोले तो लिखेंगे 6 + 12 18 इनटू आया कितना करंट? 1 एम्पियर। तो 6/18 इनटू 1 दैट इज 1/3 एम्पियर। तो इस वाली ब्रांच में 1/3 एम्पियर करंट आएगा। अब यहां आने के बाद फिर से 1/3 को जाने को कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं, यहां जाएगा, यहां जाएगा। ये ब्रांच कितने की है? 12 की है। ये ब्रांच कितने की है? 6 की है। हमारे को करंट I1 निकालो बोला है, डायग्राम में मार्क करके दिया उसने, I1 करंट निकालो, मतलब 12 वाला करंट हमको चाहिए। तो हम 6 को देखेंगे अपॉन 6 + 12 18 इनटू करंट आया कितना है यहाँ पे? 1 एम्पियर नहीं है, 1/3 है। तो ये 1/3 इनटू 1/3 हो जाएगा तुम्हारा 1/9 एम्पियर। तो किसी भी रेजिस्टेंस का हम करंट निकाल सकते हैं। जब करंट निकाल लेंगे तो उसका वोल्टेज भी निकाल जाएगा अपने को। जब करंट निकाल लेंगे तो उसका वोल्टेज निकाल जाएगा। तो हर रेजिस्टेंस में ये तीनों में करंट 1/9 1/9 1/9 जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी कंडक्टर में से कितना करंट जा रहा है यूजिंग करंट मिरर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कब आ जाता? जब डायग्राम में इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये 4 ओम, ये 6 ओम, ये 8 ओम और ये 2 ओम।
यहाँ पे बैटरी अपने को दिया हुआ है 20 वोल्ट की और इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को दे रहा 3 ओम। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ब्रांचेस का ये पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो बोला, बी ए माइनस बी बी। अब 4 और 6 सीरीज में 10, 8 और 2 सीरीज में 10, 10 पैरेलल 10, 5 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में रहे तो आधा कर देना, 2 इक्वल रहे तो आधा, 3 रहे तो 1/3, 4 रहे तो 1/4, तो ये आ गया 5, 5 + 3 8, तो करंट मिल जाएगा तुमको 20/8, that is 2.5 एम्पीयर। अब ये 2.5 एम्पीयर जब यहां से पास होगा तो 7.5 वोल्ट बनेगा इसके अक्रॉस। 2.5 into 3 7.5, तो 20 में से 7.5 वोल्ट ये इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास 12.5 वोल्ट बचा है। कितना बचा है 12.5। ये दोनों पॉइंट्स के बीच में इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y, तो x और y के बीच में तुम्हारे पास 12.5 है। तुमको वोल्टेज चाहिए a का, पॉजिटिव से अंदर जाओ, a का वोल्टेज बोले तो 6 का वोल्टेज, तो VA = 6 upon 6 + 4 10 into 12.5, ये आ जाएगा 2 3s are 2 5s are 5 2s are 10, 5 5s are 25, 7.5 वोल्ट। और इसका वोल्टेज आ जाएगा 2 VB, 2 upon 8 + 2 is 10 into 12.5 वोल्टेज तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों ब्रांचेस क्या में है, पैरेलल में है। तो ये आ जाता है तुम्हारा 2 1s are 2 5s are 5 2s are 10, 5 5s are 25, 2.5 वोल्ट। दोनों को माइनस कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा that is 2.5 वोल्ट। 7.5 minus 2.5, that is 5 volt आंसर आएगा। Now suppose that we are given a network of resistances, this extends up to infinity। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके अंदर क्या करना पड़ता कि ये पहला लैडर है, फिर ये दूसरा है, फिर ऐसे ही तीसरा आएगा। अब ये पूरे आइडेंटिकल है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें से ये एक जो है ये वाला निकाल देते हैं, ये फर्स्ट वाला निकाल दिया। अब ये निकाल देने से इंफिनिटी -1 इंफिनिटी आएगा। मतलब अगर इस रेजिस्टेंस को मैंने RAB बोला तो यहाँ पे भी मेरे को रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, RAB ही मिलेगा। तो अब मैं नया डायग्राम बना लूंगा कि इस आगे के नेटवर्क का इफेक्टिव रेजिस्टेंस RAB है, ये भी RAB ही है, तो मेरा डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ये पार्ट जो मैंने निकाला था लाइक दिस, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा RAB, ये R और ये तुम्हारा RAB। अब ये स्मॉल r और RAB कहते हैं पैरेलल में आ गए, तो स्मॉल r into RAB अपॉन स्मॉल r प्लस RAB प्लस इन दोनों का पैरेलल इसके साथ सीरीज में आ गया प्लस R इज इक्वल टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है RAB। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, R into RAB प्लस R square into RAB, R square plus R into RAB upon R plus RAB is equal to right hand side RAB। इसको हम ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो मेरे को मिल जाएगा R into RAB plus R into RAB बोले तो 2R into RAB, 2
2r into RAB plus r square is equal to ये RAB into r into RAB plus RAB into RAB square। तो ये RAB स्क्वायर यहाँ आया है, इसको यही रहने दो, बाकी के टर्म्स को उधर लाते हैं अपन। तो क्या बनेगा RAB स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये 1 RAB ये 2 RAB उधर आके माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस RAB प्लस माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके तुम रूट्स निकालेंगे, माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a बोले तो यहाँ पे 1 है, b बोले तो तुम्हारा माइनस r है और c बोले तो माइनस r स्क्वायर है। ये वैल्यू जिसके अंदर तुम पुट करेंगे तो तुम्हारे को RAB के रूट्स मिल जाएंगे। So that will give you the effective resistance between points A and B। अब इसमें और एक वेरिएशन क्या कर सकता, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दे सकता, ठीक है ना, देने दो, क्या प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, मेन चीज ये हमेशा याद रखो, तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं। क्या होगा, बहुत से लोग अपने को नहीं आएगा, अगर वो क्वेश्चन का हमने अपने दिल में डर बिठा लिए तो साइकोलॉजिकली हम डिस्टर्ब हो गए तो हमारे आगे के क्वेश्चन रॉन्ग होना शुरू हो जाते। ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा राइट आते थे वो भी रॉन्ग हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ देना, अगले क्वेश्चन पे चले जाना और उसको मार्क करके रखना कि नॉट अटेम्प्टेड। ये तो बाद में 180 में से ढूंढते बैठेंगे कौन से छोड़ दिए थे, समझे। तो डोंट टेक इट ऑन योर माइंड। अब ये यहाँ पे आर आ गया, अब हम ये R और RAB का पैरेलल निकालेंगे और ये R ये कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस और ये तीसरा जो यहाँ आ जाएगा ये तीनों सीरीज में आएंगे। ये R प्लस R क्या आ जाएगा 2R, तो फिर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्लस 2R, सिंपल। या ऐसा भी हो सकता है कि ये 2R दे दे, ये 2R दे दे, तो फिर R into RAB के बजाय 2R into RAB कर लेने का, सिंपल। तो ऐसा कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखो एक क्वेश्चन ये जैसे मैंने रेजिस्टेंस पे किया, ऐसे क्वेश्चन कैपेसिटर में भी होता है। कैपेसिटर में सिर्फ सीरीज और पैरेलल के फार्मूले इंटरचेंज है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे ये A और B दो पॉइंट्स है, अपने को बोला है कि VA माइनस VB निकालो, करंट A से B जा रहा है ऐसा बोल रहा हो, तो VA माइनस VB फाइंड आउट करने का है। अब VA माइनस VB बोले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, A और B के बीच में जितने रेजिस्टेंस हैं सबका वोल्टेज निकालना, सबका क्या निकाल लेना, वोल्टेज। अच्छा आगे क्या बोल रहा, 1 एंपियर करंट गया 12 ओम में से, 12 6 3, ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट डिवाइड होता, तो 12 में से 1 गया तो 6 में से कितना जाएगा, आधा रेजिस्टेंस मतलब डबल करंट, 6 का आधा 3, तो यहाँ पे करंट 2 का डबल 4, तो टोटल करंट कितना हो गया 4 + 2 6 + 5 7, मतलब यहाँ पे 7 एंपियर करंट आ रहा है। अब ये दोनों वोल्टेज निकल जाते हैं तुम्हारे, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब यहाँ पे 1 एंपियर × 12 वोल्ट, बस खलास, ये दोनों का नहीं लगेगा क्योंकि पैरेलल में सबका वोल्टेज सेम रहता है। अच्छा ये 7 एंपियर जो है वो इन दोनों में डिवाइड होगा, तो हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करके खेल करते बैठने के बजाय 18 और 9 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। 18 × 9 अपॉन 18 + 9, 9 1 जा 9 3 जा 3 1 जा 3 6 आ, तो ये 6 ओम आएगा। 6 ओम में करंट जा रहा है 7 एंपियर, पूरा मिला के इसमें से जाएगा ना, तो 7 6 जा 42 और वही 7 एंपियर इसमें से भी जा रहा है तो 28।
तो ये हो गया 70, 82, 89, 93, 103 वोल्ट। तो VA minus VB will be 103 वोल्ट। तो सिंपल सीरीज पैरेलल के लॉजिक को यूज करके हमने उस क्वेश्चन को क्या कर लिया, आसानी से सॉल्व कर लिया। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस। अब कोई भी सेल जब हम सर्किट में यूज करते हैं तो सर्किट में जाने वाले करंट को जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो अपोज करेगा। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो कोई भी सेल जो करंट सप्लाई करता है तो ये रेजिस्टेंस उसको अपोज करेगा। इस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए सेल को वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज W। so E is equal to W upon Q, इसको बोलते हैं EMF। EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअल फोर्स नहीं है, एक्चुअल क्या है, वर्क डन है, लेकिन नाम में फोर्स आ गया उसके। तो E is equal to W upon Q और W is equal to EQ। अब ये जो सेल ने करंट सप्लाई किया, इस करंट को पूरे सर्किट में अगर घूमना है तो दो तरह के अपोजिशन आएंगे, एक कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो वर्क डन है इन दोनों के लिए है, इसको कंप्लीट सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट सर्किट। अब अगर मैंने सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया तो इसके लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस। सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसका वर्क डन ऑब्वियसली कम आएगा, कैपिटल W जितना तो नहीं आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्मॉल w इज इक्वल टू बिग Q। और एक वर्क डन इस रेजिस्टेंस के लिए करना पड़ता है, उसको बोलते हैं W डैश इज इक्वल टू स्मॉल v, where small v is the potential across the internal resistance। अब अगर मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज किया तो W is equal to small w plus W dash, or simply I can write E is equal to V plus small v, or E minus small v is equal to capital V। अब small v मतलब potential drop across internal resistance, ये होता है तुम्हारा IR। तो E minus IR is equal to V। इसका मतलब EMF में से अगर हम एक नंबर माइनस करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, मतलब E हमेशा V से बड़ा होगा अगर I is not equal to 0। क्योंकि अगर IR 0 हो गया मतलब या तो I 0 होना नहीं तो R 0 होना। अब I 0 हो सकता है लेकिन स्मॉल r कभी 0 नहीं होता। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नेवर इक्वल टू 0। क्यों कि इंटरनल रेजिस्टेंस ये सेल के केमिकल कंपोजिशन की वजह से आता है। इंटरनल रेजिस्टेंस काय पे डिपेंड करता, नंबर 1 सेपरेशन ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स, नंबर 2 एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, नंबर 3 कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर सेपरेशन ज्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, एरिया ज्यादा है इलेक्ट्रोड का तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम आएगा, कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है इलेक्ट्रोलाइट का तो फिर भी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। तो ये तीन चीजों पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इट्स वैल्यू कैन नेवर बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 होना है तो I को 0 होना पड़ेगा। तो E is equal to be possible if and only if I is equal to 0। मतलब जब सेल ओपन सर्किट होता है तो हम उसमें से करंट ड्रॉ नहीं करते। जब करंट ड्रॉ नहीं करेंगे तो EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोथ विल बी वन एंड द सेम। अब यहाँ पे मैंने स्मॉल v और कैपिटल V की वैल्यू अगर डाल दिया तो मेरे को इक्वेशन मिलेगा IR plus IR और E upon R plus R is equal to I and V upon capital R is also equal to I। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर आपको चार्ज को घुमाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल सर्किट में घुमाना है
स्मॉल w वर्क करना पड़ेगा, एंटायर सर्किट में घुमाना है तो कैपिटल W करना पड़ेगा, और सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस में घुमाना है तो W डैश करना पड़ेगा। अब ये दो जो मैंने इक्वेशन लिखे थे इसके ऊपर से मैं दोनों को डिवाइड कर सकता हूं। E अपॉन V इज इक्वल टू R प्लस R अपॉन R, और E अपॉन V R बाय R इज 1, लेफ्ट हैंड साइड पे लाया तो -1 इज इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R, और सिंपली स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इनटू ब्रैकेट E अपॉन V -1। अब क्वेश्चन में बोला ओपन सर्किट सेल है तो वोल्टमीटर रीड करता है 4 वोल्ट। अगर हमने सेल को शॉर्ट कर दिया बाय 10 ओम रेजिस्टेंस तो फिर सेल रीड करता है 3.6 वोल्ट। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कितना है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 10 कैपिटल R, जिससे हमने शॉर्ट किया है सेल को। ये जो रेजिस्टेंस है ये शॉर्टिंग करने के लिए, शॉर्टिंग नहीं शॉर्टिंग, तो शॉर्ट कर दिया हमने 10 से, इनटू ब्रैकेट EMF इज 4 एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 3.6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा R इज इक्वल टू 10 इनटू 4 माइनस 3.6 0.4 अपॉन 3.6, 4 1 जा 4 9 जा, इंटरनल रेजिस्टेंस आता है 10 अपॉन 9 ओम। तो ये बेसिक रिलेशन है, इसके ऊपर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन के वर्डिंग्स हमारे ध्यान में रहेंगे, 2-4 दिन की बात है, आसानी से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हम अगर सेल्स को ग्रुप करते हैं, हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं जिनका EMF है E1 E2 E3। अब मैंने इनको सीरीज में लगाया तो EMF इन सीरीज ये आ जाएगा मेरा E1 E2 E3 E4 एंड सो ऑन। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4, तो फिर मेरे को टोटल EMF मिलेगा E इफेक्टिव इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस 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 अप टू EN, और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस अप टू प्लस RN। तो ये हो गया तुम्हारा इफेक्टिव EMF और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मैंने सेल सपोज इक्वल EMF पे लिया, सारे सेल्स का EMF कैसा है, इक्वल है, E1 E2 EN are equal, E1 is equal to E2 is equal to up to is equal to EN, R1 is equal to R2 is equal to up to RN। तो फिर इफेक्टिव EMF अपने को मिल जाएगा N टाइम्स E, और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा N टाइम्स R। अब मेरे पास 10 सेल्स हैं, 10 सेल्स, इनको मैंने सीरीज में लगाया। क्वेश्चन क्या है देख लो, 10 सेल सीरीज में लगा लिया अपन। अब बाय मिस्टेक हर सेल का EMF E है, एवरी सेल हैज EMF equal to E and internal resistance equal to R। अब हम इनको लगा रहे सीरीज में, लेकिन बाय मिस्टेक 3 सेल गलत लग गए। 3 सेल गलत लग गए मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव जाने के बजाय नेगेटिव को नेगेटिव चला गया, इसको बोलते हैं wrongly connected। So 3 cells are wrongly connected। मतलब हम जब EMF को ऐड करेंगे तो पूरे 10 तो ऐड नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि 3 कैसे लग गए, गलत तरीके से लग गए। तो जब 3 गलत लग गए तो एडिशन कितने का होगा, 7 का होगा, 7 ही। 3 सेल गलत लग गए हैं, तो 3 सेल गलत लग गए हैं तो उनका EMF माइनस करना पड़ेगा। तो एडिशन में 3 सेल नहीं आए क्योंकि वो उल्टे लगे थे, और उनका उल्टा लगना
तो 7 करेक्ट लगे थे 7 ही, 3 गलत लगे थे -3, बचा क्या 4e। रेजिस्टेंस को पोलैरिटी नहीं होती, रेजिस्टेंस 10R आएगा। तो ये ध्यान में रखो, जितने सेल रॉन्ग लगते हैं उसको डबल कर लेना। 3 गलत लगे, 3 का डबल 6, 10 - 6 4 आंसर आएगा। अगर 10 में से 2 सेल गलत लगते हैं तो 2 का डबल 4, तो 10 - 4 आंसर आता था 6e, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड ही होते जाएगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है सेल्स का, तो सीरीज में ईएमएफ भी बढ़ता है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अब अगर हमने इन सेल्स को पैरेलल में लगाया, ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, पहला सेल ईएमएफ E, दूसरा E, तीसरा E, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो इफेक्टिव ईएमएफ E आ जाएगा क्योंकि तीनों का ईएमएफ सेम है। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस R/3 आएगा क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। इक्वल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, टेक एनी वन रेजिस्टेंस एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये 3 है तो R/3, 4 होते तो R/4। लेकिन अगर अलग-अलग ईएमएफ के 2 सेल हैं, E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अब इसका मेरे को ईएमएफ निकालना है, तो इसके लिए मेरे पास फार्मूला है E1 R2 क्रॉस प्लस E2 R1। प्लस इसलिए किया कि पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट होता था तो माइनस लेते थे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसको बोलते हैं इफेक्टिव ईएमएफ। और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस R effective will be R1 R2 upon R1 plus R2। ये सेल्स इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल हो जाएगा। अब अगर ऐसा हो गया कि तुम्हारे को 2 से ज्यादा सेल है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये रेजिस्टेंस, फिर ये दूसरा सेल, फिर ये रेजिस्टेंस और ये आखिरी सेल, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं लगे। ये दिया हुआ है तुमको सपोज 4 वोल्ट 2 ओम, ये दिया हुआ है 3 वोल्ट 1 ओम, ये दिया हुआ है रेजिस्टेंस 5 ओम, और ये सेल है आपका 6 वोल्ट एंड 2 ओम। अब क्या करने का, इस पॉइंट का कॉमन पोटेंशियल निकालना। अपने को क्वेश्चन में क्या बोला, इस रेजिस्टेंस में से जाने वाला करंट निकालो। ये मैं तुम्हारे को एकदम आसान वाला मेथड बता रहा हूं। इसमें क्या करना है, यहाँ का कॉमन पोटेंशियल निकालना। ये पॉजिटिव कनेक्टेड है तो 4/2, ये नेगेटिव कनेक्टेड है -3/1 प्लस, इसमें कुछ भी ईएमएफ नहीं है तो 0/5 प्लस क्योंकि ये पॉजिटिव कनेक्टेड है 6/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/5, ये लेना पड़ेगा, प्लस 1/2। इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुमको इफेक्टिव ईएमएफ मिल जाएगा। मतलब कॉमन पोटेंशियल जिसको हम बोल रहे हैं, हमने इसको क्या बोला है, कॉमन पोटेंशियल। इमीडिएट सॉल्व करके देख लेते हैं। 4/2 is 2 plus 3 5 minus 3 2 divided by 2/5, 2 का एलसीएम आता है 10, 5s are 10s are 2s are और 5s are, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉमन पोटेंशियल 2 10 का 20 अपॉन 15 17 22। अब
20/22 minus 4 upon 2, ये आ जाएगा यहाँ पे जाने वाला करंट, ये नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। ये हो जाता 88, 20 minus 88 minus 68 upon 2 into 22 is 44 ampere। यहाँ पे नेगेटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो यहाँ 20/22 plus 3 ऐड करने का डिवाइडेड बाय 1, यहाँ का करंट आ जाएगा। यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है तो डायरेक्ट इसी वोल्टेज को 5 से डिवाइड कर देने का, तो यहाँ पे करंट आएगा तुम्हारा 20/22 into 5, 2 10s are 2 11s are, that is 10/55 ampere। ये ऊपर आएगा, ये वाला करंट भी ऊपर ही आएगा, पॉजिटिव करंट आ। तो इस तरह से एक से ज्यादा अगर सेल है तो हम कॉमन पोटेंशियल निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। एंड दिस पर्टिकुलर concept which I have explained to you is called as Millman theorem। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में भी यूज कर सकते हैं हम, जहां एक से ज्यादा बैटरी है। नहीं तो नॉर्मली हम किरचॉफ लॉ से सॉल्व करते या स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार से सॉल्व करते, लेकिन ये इजीयर मेथड है, तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब अभी अपन ने क्या पढ़े कि किसी भी रेजिस्टेंस में अगर करंट पास करना है तो हमको वर्क डन करना पड़ता, दैट इज W is equal to VQ। Now this work done appears in the resistance in the form of heat energy, so heat is equal to VQ। Q के जगह पे मैं IT रख सकता हूँ, so VIT। Heat produced in any resistance is given by VIT। V बोले तो potential difference across the resistance, I बोले तो current और T बोले तो time for which the current is passed। अब ये जो एनर्जी आएगी ये जूल में आएगी, इसको अगर मैंने 4.2 से डिवाइड कर दिया तो ये एनर्जी मेरे को कैलोरी में मिल जाएगी। दिस एनर्जी आई विल गेट इन कैलोरी। अब इसी इक्वेशन में अगर मैंने V के जगह IR रख दिया तो I²RT/J, या अगर मैंने I के जगह V/R रखा तो V²T/J/R। ये तीनों फॉर्मूले अपने को हीट एनर्जी देंगे। अब इसके अंदर सपोज तुम्हारे को बोला कि एक हीटर है जो 1 kg वाटर को मेल्ट कर रहा है, 1 kg आइस को मेल्ट कर रहा है। सॉरी, आइस का टेम्परेचर 0 है, आइस का टेम्परेचर 0 है। 1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए 80 किलो कैलोरी हीट लगती है। कितनी लगती है? 80 किलो कैलोरी। इसका मतलब H की वैल्यू 80 किलो कैलोरी आ गई। तुम्हारे को पोटेंशियल डिफरेंस देगा, रेजिस्टेंस देगा, जे तुमको मालूम है, टाइम कितना लगेगा ये तुमसे पूछेगा, तो इसको इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर कैसा है कि मेरे पास एक हीटर है, अपने घर में हीटर होता है ना, गीजर हीटर यूज करते हैं पानी गर्म करने के लिए। तो ये जो हीटर है ये पानी को गर्म करता है T1 टाइम में। एक दूसरा हीटर है वो पानी को गर्म करता है T2 टाइम में। अब मैंने अगर दोनों को सीरीज में लगा दिया तो TS will be T1 plus T2। सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली टाइम ज्यादा लगेगा। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन द टाइम टेकन विल बी T1 plus T2। और अगर मैंने इन दोनों हीटर्स को पैरेलल में लगा दिया, दिस इज फर्स्ट हीटर and then I am putting the second heater in parallel। अब रेजिस्टेंस कम होगा तो पैरेलल में टाइम लगेगा T1 T2 अपॉन T1 plus T2। लेकिन ये गलती कभी करना मत, अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो करंट बहुत ज्यादा खींचेगा जिससे अपने घर की वायरिंग डैमेज हो सकती है। सो डोंट ट्राई दिस। इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर। क्या में यूज होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब। ये वाले नहीं, CFL और LED। यहाँ पे दूसरे
दूसरा प्रोसेस है तुम्हारा जो इनकैंडेसेंट लैंप है, फिलामेंट वाला जो बल्ब है, उसमें ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं। अब ये सर्किट्स में ये क्वेश्चन है जो अपन डिस्कस करना भूल गए थे, डिस्कस कर लेते हैं इसको। ये दो बैटरीज है, ठीक है, यहाँ लगी है एक बैटरी, यहाँ एक बैटरी, यहाँ भी लग सकती है, बीच में रेजिस्टेंस हो सकते हैं। प्रोसीजर यही रहेगा। अब चेक ये करना कि बैटरी का नेगेटिव इस बैटरी के पॉजिटिव हो गया, मतलब ये दोनों ईएमएफ ऐड हो गए, 4 + 6 10। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में? ये 1.5, ये भी 1.5, 3 और 2 5, बराबर 5, और ये आएगा तुम्हारा 3.75, 15 और 5 का पैरेलल, 15 into 5 upon 15 plus 5, so that should give me 75 upon 20, that is 7.5 by 2, 3.75, और ये आएगा 0.75। तो देखो कितना हो गया, 1.5 plus 1.5 3 plus 2 5 plus 3.75, बोले तो 8.75 plus 0.75, 8.75 plus 0.75, that is 9.5 ohm। ये आ जाएगा तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस 9.5। इसका मतलब इस सर्किट में जाने वाला करंट 10/9.5, that is 20/19, which is 19 1 19, 0 5 95, 1.052 एम्पियर। अब ये 1.025 एम्पियर जाता है। तुम्हारे को क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि अगर E1 के अक्रॉस वोल्टमीटर लगाएंगे तो वोल्टमीटर का रीडिंग क्या आएगा बोलो। तो जब हम E1 के अक्रॉस वोल्टमीटर लगा के E1 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो ये ड्राइवर बनेगा, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ये ड्रिवन बनेगा। ड्राइवर जो ड्राइव करता है और जो जाता है साथ में वो ड्रिवन हो जाता है। तो अब हमारे को यहाँ का वोल्टेज चाहिए, तो ड्राइवर में I into small r ऐड होगा, EMF के अंदर I into small r ऐड हो जाएगा, तो V is equal to 4 plus R is 0.5 और ये 1.052, बोले तो इसको आधा कर लो, 0.526। ये आंसर आएगा तुम्हारा V1 is equal to 4.526। और ये जो दूसरा सेल है इसमें से करंट ड्रिवन है, तो इसके ईएमएफ में से IR माइनस करना, तो V2 में आ जाएगा तुम्हारा 6 माइनस रेजिस्टेंस इज 1, करंट इज 1.052, तो 1.052 माइनस कर दो, नियरली 5 वोल्ट आएगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार पूछा गया है। पुराने एग्जाम्स अगर आप देखते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन अपीयर्ड है। अब हम क्या लिख रहे हैं, वर्क डन फॉर ड्राइविंग करंट I for time t is VIT, bring time on the left hand side, so W upon t is equal to voltage into current। वर्क डन अपॉन टाइम को बोलते हैं पावर, so electric power is voltage into current, V के जगह पे IR लिख दो, so power is equal to I square R। ये फार्मूला यूज होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर मैंने I के जगह पे V/R लिखा तो पावर हो जाएगा V²/R। ये फार्मूला यूज होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस इंडिविजुअल। किसी एक बल्ब का पावर आपको मालूम है, उसका वोल्टेज रेटिंग मालूम है, तो उसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, P = V²/R। अब हमको तो ये पता है कि जो बल्ब का पावर ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो 100 वाट का रेजिस्टेंस सबसे कम है, इसीलिए उसका फिलामेंट ठीक आएगा। 40 वाट का फिलामेंट थिन आएगा, 100 के कंपैरिजन में थिन आएगा। तो ये ध्यान में रखना कि
बिगर पावर थिक फिलामेंट, लेसर पावर थिन फिलामेंट। अब मेरे पास 3 बल्ब्स हैं, ये 15 वैट का है, इसका वोल्टेज 220 वोल्ट, ये है 40 वैट का, इसका भी वोल्टेज 220, और ये वाला है 100 वैट, इसका भी वोल्टेज 220। तीनों को हमने सीरीज में लगाया अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई, 220 वोल्ट के सप्लाई का अक्रॉस लगाया। क्वेश्चन ये पूछा है सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा बल्ब जलेगा, तो हमारा आंसर ये है कि सबसे ब्राइट 15 वैट वाला बल्ब जलेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में फार्मूला हमारा है I²R, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर भी ज्यादा, तो सबसे ब्राइट 15 वैट, सबसे डल 100 वैट। अब इन्हीं बल्ब्स को अगर मैंने पैरेलल में लगाया तो पैरेलल में इनवर्स रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ, तो 100 वैट का ग्लो सबसे ज्यादा होगा और 15 वैट का ग्लो सबसे कम होगा। तो हमारे घर में जो कनेक्शन है ये पैरेलल कनेक्शन है, हमारे घर में जो कनेक्शन लगे हुए हैं ये सब पैरेलल कनेक्शन है। अब अपने को क्वेश्चन क्या बोला कि एक 220 वोल्ट 100 वैट बल्ब है, इसको हमने 110 वोल्ट पे जलाया तो कितना पावर देगा। अब तुम सोचोगे 220 का आधा 110 हो गया तो पावर भी आधा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पावर का रिलेशन V के साथ नहीं है, V के स्क्वायर के साथ है, तो वोल्टेज बिकम्स हाफ, देन पावर विल बिकम 1/4, तो 100 वैट का 1/4 25 वैट हो जाएगा। अब अगर हमने अलग-अलग बल्ब्स को सीरीज में लगाया, अलग-अलग बल्ब्स को सीरीज में लगाया, एक 40 वैट सीरीज 60 वैट, तो दोनों मिलके हमको पावर देंगे PS = P1 × P2 अपॉन P1 + P2, 40 × 60 अपॉन 40 + 60, दैट इज 24 वैट। और अगर इनको पैरेलल में लगा दिया, इन पैरेलल दे विल गिव P1 + P2, दैट इज 100 वैट। अब उसने क्या बोला कि 3 आइडेंटिकल बल्ब्स सीरीज में लगाए, तो तीनों मिलके पावर देते 10 वैट। 3 बल्ब आइडेंटिकल है, तीनों को सीरीज में लगाए तो पावर कितना देते 10 वैट। इफ कनेक्टेड इन पैरेलल हाउ मच पावर दे विल गिव, अगर पैरेलल में लगाया तो कितना पावर देंगे। अब देखो 3 आइडेंटिकल मिलके 10 दे रहे, सीरीज में पावर कम होता है, तो PS = P/3, PS is 10, so 10 × 3 30, मतलब एक बल्ब का पावर 30 वैट का है। अब ऐसे तीनों को मैं पैरेलल में लगाऊंगा तो 30 30 30 will give me how much 90 वैट। तो इसको बोलते हैं पावर इन सीरीज एंड पावर इन पैरेलल। तो पैरेलल में पावर बढ़ता है और सीरीज में पावर घटता है। अब 2 साल पहले के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि एक बल्ब है, उसका रेटिंग दिया था 40 वैट 200 वोल्ट, ठीक है। ये मैक्सिमम ग्लो करता है जब हम इसको 200 वोल्ट का सप्लाई देते हैं, तो ऑब्वियस है ना, 200 वोल्ट उसका रेटिंग है तो मैक्सिमम ग्लो करेगा। अब वो क्या बोल रहा, इफ कनेक्टेड अक्रॉस 400 वोल्ट, अब 400 वोल्ट को लगाएंगे आज तो बल्ब तो उड़ जाएगा, क्योंकि वो कितने का है 200 का है। तो इफ कनेक्टेड अक्रॉस 400 वोल्ट, व्हाट शुड बी सीरीज रेजिस्टेंस।
अब इसके अंदर एक चीज तुम देखो, 400 वोल्ट अगर देंगे तो बल्ब को 200 चाहिए तो 200 ले लेगा। एडिशनल 200 जो है वो किसको लेना पड़ेगा? रेजिस्टेंस को लेना पड़ेगा। मतलब जितना वोल्टेज बल्ब ले रहा है उतना ही वोल्टेज रेजिस्टेंस भी लेगा। अब बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो, R = V²/P। So V² is 200 into 200/40। तो 40 बनेगा 45 तो रेजिस्टेंस आ गया तुम्हारा 1000 ओम। तो 1000 ओम का रेजिस्टेंस 200 वोल्ट खाता है और बचे हुए 200 खाने के लिए कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली 1000 ओम। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। कोई इक्वेशन नहीं, कोई ज्यादा परेशानी नहीं, सीधा सीधा कांसेप्ट है। अगर वो बोलता कि 400 नहीं 300 वोल्ट लगाया हमने, मतलब 200 वोल्ट तो बल्ब खाएगा, एक्स्ट्रा कितना बचा? 100 वोल्ट। अब 200 वोल्ट खाने वाले का रेजिस्टेंस कितना है? 1000। तो 100 वोल्ट खाने वाले का रेजिस्टेंस 1000 होगा क्या? नहीं, वो आधा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जाने वाला करंट तो सेम है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, तो जितने टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतने टाइम्स वोल्टेज भी बढ़ेगा। जितने टाइम्स रेजिस्टेंस कम होगा उतने टाइम्स वोल्टेज भी कम होगा। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है जो वेरी लाइकली टू बी आस्क्ड। अब क्वेश्चन क्या दे रहा कि 25 वैट 200 वोल्ट बल्ब और 100 वैट 200 वोल्ट बल्ब दोनों को सीरीज में लगाया। कैसे लगाया? इन सीरीज अक्रॉस 400 वोल्ट सप्लाई। तो फिर दोनों में से कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? अब इसका काम आसान है। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। पावर इज 25/200 इज इक्वल टू करंट। मतलब ये 25 वाट वाला जो बल्ब है ये 1/8 एम्पियर टॉलरेट कर सकता है, उससे ज्यादा करंट ये टॉलरेट नहीं करेगा। सिमिलरली 100 वाट वाला बल्ब है, 100/200 बोले तो ये 1/2 एम्पियर टॉलरेट कर सकता है। अब हमको इनको लगाना है सीरीज में, तो सीरीज में रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। R1 is equal to 200 into 200/25। 25 1 25 8 बोले तो 1600 ओम। R2 is equal to 200 into 200/100 बोले तो 400 ओम। अब दोनों को सीरीज में लगाएंगे तो सीरीज का रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1600 plus 400 2000 ओम। और हम वोल्टेज कितना दे रहे हैं? सो I is equal to 400/2000 that is 0.2 एम्पियर, या इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5 एम्पियर। अब तुम मेरे को बोलो जब सीरीज में लगाएंगे तो करंट आधा 1/5, इसको कितना चलता? 1/8 चलता। 1/5 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसका मतलब ये फ्यूज हो जाएगा। इसको 1/2 चलता, 1/5 आसानी से चलेगा। 1/2 0.5 होता है, 1/5 0.2 होता है। 0.5 इसको चलता, 0.2 भी चलेगा ही ना। ये 0.125 है, 0.125 वाले को 0.2 दे नहीं सकते अपन, तो ये बल्ब 25 वाट वाला क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। तो ये इसके सॉल्व करने का आसान तरीका है। अब किसी भी सर्किट में जो पावर ट्रांसफर होता है वो मैक्सिमम रहेगा। क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो गए। इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या बोलते हैं?